We are live. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फायजा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अदनान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं मैडम कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, आज का जो हमारा सेशन था डिस्क बल्ज एंड पोस्चर डिस्कशन के हवाले से, तो हम जी इस पर डिस्कशन करते हैं। अगर आप हमें सबसे पहले फर्स्ट 5 मिनट के लिए अगर अपनी ऑडियंस का वेट कर लें, सो देन वी कैन जी स्टार्ट श्योर, एट बिल्कुल 3 or 4। बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट प्लीज होल्ड फॉर 5 मिनट। डॉक्टर फैज़ा, प्लीज़ हमें थोड़ा सा सबसे पहले अपना इंट्रो अगर बता दें, आपकी Okay, I'm ग्रेजुएशन। Dr. Faiza Khan. I was graduated in 2017 from Lahore Medical and Dental College. या दैट्स So currently, after my house job, currently I'm working in a clinical as a clinical physiotherapist in Spinacure Medical Center. अमेजिंग। और फिर अ, अगर हमें ऑडियंस हमारी ज्वाइन कर रही है, अगर आप आवाज़ आ रही है तो काइंडली मेंशन कर दें कमेंट्स में, सो वी हैव एन आइडिया के कैन यू हियर गाइस। Yes, we see got comments. We can hear us. Here we go, Dr. Faiza. Can you please? Okay, I can see the comments. Is it Yeah, possible I can see? yeah, Yeah, sure. you can do. Yeah, you Okay. can see. They are mentioning students. They can hear us. Yeah. They hear. So we got concluded that we are live and everyone can hear us. डॉक्टर फायजा प्लीज़, आज के टॉपिक की डिस्कशंस हमारी जो थी इट वाज अबाउट पोस्चर इन रिलेशन विद डिस्क बल्ज। द फर्स्ट क्यूरी इज दैट के व्हाट इज डिस्क बल्ज? Okay, first of all, if we start from very basic like spinal anatomy, there are 33 vertebrae. So या between the vertebrae, there is a cushioning of pad-like cushioning, which is called an intervertebral disc. So intervertebral disc bulge is a condition when this soft disc, when the nucleus of this soft cushioning, it protrudes outward, crossing crossing the outer layer, which is a tough annulus fibrosis. And when it protrudes outward, it disrupts all the spinal cord and the nerves crossing through this at that level. So this condition may cause uh, various symptoms like pain at the lower back, radiating pain in the legs,
tingling, numbness, and these type of sensations may occur. So when the it can occur in all of the spine, like all the 33 vertebrae, but the most common site is the lumbar and the cervical. Lumbar is the low back and the cervical, the neck area. Uh, the next query I would like to ask, how we can differentiate disc bulge from other conditions. Like in cervical, we have other many compressions and neuropathies, and then while discussing about lower back, then there are other many diseases. Being a physical therapist or being DPT students, how I can differentiate disc bulge from others. Okay, as it is a very good question. Like in the spinal pathologies, there are several spinal pathologies. It basically depends upon the physical examination. So first of all, if a patient presented that has pain, patient ने present किया like उसके pain है neck में और वो radiate कर रही है उसके दोनों हाथों में, या इसी तरह लंबर में अगर पेन है और वो रेडिएट कर रही है, लो बैक की पेन है वो रेडिएट कर रही है टांगों में उसकी, तो और साथ साथ अगर पेशेंट कंप्लेन करता है नमनेस की, टिंगलिंग सेंसेशन की, तो इट माइट बी एन एविडेंस कि हम इसको डिस्क बल्ज से कवर कर सकते हैं, लेकिन इट इज जस्ट अ फिजिकल एग्जामिनेशन. उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन इज बैक्ड बाय द एमआरआई इमेजिंग लाइक एमआरआई, सीटी स्कैन्स और एक्सरेज. X-ray is a main basic, X-ray और MRI is a main basic thing, is a core gold standard कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डिस्क इसमें डिस्क बल्ज है या नहीं है. ठीक है. दूसरी कंडीशन स्पाइनल पैथोलॉजीज वाकई बहुत ज्यादा होती हैं, लाइक पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इफ पेशेंट हैज अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ सर्जरी और पेशेंट को कोई अंडरलाइन कंप्लेन तो नहीं है, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है फीमेल्स में, लाइक आर्थराइटिस हो सकता है, इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं जो कि इसको स्पाइन को इफेक्ट कर रही हैं. फिर सेकेंडली फाइनली हम जो है पेशेंट को से असेसमेंट के बाद उसके गोल्ड स्टैंडर्ड्स देखने के बाद फिर पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि ये डिस्क बल्ज है या कोई और स्पाइनल कंडीशन है. फिर पेशेंट को हम गाइड करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट प्लान, इसके पॉसिबल ऑप्शंस ये हो सकते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस ये हो सकते हैं, इसका बेनिफिट ये है और इसका रिस्क फैक्टर ये हो सकता है, और पेशेंट को इन्वॉल्व करके और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करेंगे हम. Okay, yeah, that's great. I guess covered well. Next thing is, how does posture does really affect? Does it really cause disc bulge? There are researchers, either theories that people say posture uh, does not affect at all our spine, our disc bulge, or other. But it's not. There on the other side, the people say it affect a lot. So please, can you add? ओके, एज आई हैव डिस्कस्ड बिफोर कि बहुत सारी स्पाइनल कंडीशंस हो सकती हैं. इट इज नॉट रियली अ पोस्चर, बट पोस्चर इज अ फैक्टर जो आई गेस मेरे ख्याल से 50% तो स्पाइनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ही करता है. पोस्चर अंडरलाइन कंडीशंस मैंने जिक्र किया पहले भी, क्या मे बी एन ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, सर्जिकल कुछ हो सकता है, लेकिन पोस्चर जो है, पुअर पोस्चर जब होता है तो it definitely causes the disc bulge. If you maintain a poor posture for a long extended period of the times, तो उससे क्या होगा, स्पाइन के ऊपर एक एडिशनल स्ट्रेस आ जाएगा, एक एडिशनल स्ट्रेस आएगा स्पाइन पे, डिस्क पे और उसके सराउंडिंग मसल्स पे, दैट कैन लीड्स टू वियर एंड टियर ऑफ द सेवरल स्पाइनल डिस्क पे और मसल्स पे, और इसके कॉजेज द डिस्क बल्ज और हर्निएशन. तो एक मैकेनिज्म ये हो सकता है कि हम अंडरलाइंग एक पोस्चर में नहीं बैठे और वो एडिशनल स्ट्रेस डाल रहा है. दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर हम पुअर पोस्चर होता तो उसके कोई अननेचुरल स्पाइनल कर्व्स होते हैं, स्पाइन जो है लॉर्डोटिक और काइफोटिक, जो नॉर्मल कर्व्स स्पाइन के होते हैं, इफ वी आर नॉट अलाइंड, इफ वी आर नॉट सिटिंग इन अ प्रॉपर पोस्चर, तो स्पाइनल कर्व्स को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, और स्पाइनल कर्व्स को हम डिस्टर्ब करेंगे मतलब हम वी आर causing an unnatural pressure on the spinal disc. तो वो जब डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इट कैन कॉज डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्जेस. और ऑन द अदर हैंड कि अगर हम देखें तो हम इफ यू मेंटेन अ गुड पोस्चर,
इफ यू मेंटेन गुड पोस्चर तो उससे वो वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द स्पाइन, और इससे फिर काफी प्रेशर जो है वो रिलीफ भी होता है. वी फील गुड इफ वी आर प्रोलॉन्ग, इफ वी आर सिटिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन अ सेम पोस्चर, उसके बाद हम सीधे बैठे तो हमें खुद भी रिलीफ फील होता है. तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पोस्चर का कितना ज्यादा रोल है. Uh, I hope everyone got your point. The next thing is, which population is the highest risk at highest risk? Uh, ज़्यादा प्रेवलेंस किस पॉपुलेशन में है डिस्क बल्ज की? अच्छा Adnan, I have seen various researches. There is no evidence that suggests कि females में ही ये common होगी या males में ही common होगी. So there is no evidence कि ये फीमेल में ज्यादा प्रेवलेंट है या मेल्स में कम प्रेवलेंट है. इट कैन बी एट एनी एज, एनी जेंडर और एनी एथनिसिटी, किसी में भी हो सकती है. बट देयर आर रिस्क फैक्टर्स लाइक ओबेसिटी, स्मोकिंग, दैट कैन कॉज एन एडिशनल प्रेशर ऑन द डिस्क, और उसमें लेकिन ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. But according as I'm working in a spine center, so I have seen females are more prone to this condition. It is my perception, my observation just that I have seen that many females are affected more. They complain more of the back pain, more disc bulges. ऐसा क्यों है? क्योंकि in our society हम देखते हैं normally females जो हैं without any giving any specific protocol to their posture, वो अपने हाउस कोर्स में बिजी होती हैं, like they're lifting heavy weights or doing any house chores without bothering their posture, और वो बेंड करके बेंडिंग में ट्विस्टिंग में दे आर डूइंग ऑल दैट स्टफ. तो उससे जो है और दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं लाइक प्रेगनेंसी. तो ये फैक्टर्स फीमेल्स को ज्यादा इफेक्ट करते हैं रादर देन मेल्स. इट इज जस्ट माय ऑब्जर्वेशन, बट एविडेंसेस सेज के ये कोई लिमिटेशन नहीं है, कि कोई वो नहीं है कि मेल्स में ज्यादा प्रेवलेंट है या फीमेल्स में. तो स्टूडेंट्स के लिए एक स्टडी टॉपिक बन सकता है, एक रिसर्च टॉपिक बन सकता है. अब जो अपकमिंग हमारी जनरेशन वो उस पे एक रिसर्च कर सकती है कि ये कौन सी किस में प्रेवलेंट है, फीमेल्स में या मेल्स में, और उनके रिस्क फैक्टर्स और उनके कॉमन कॉजेज भी ढूंढ सकते हैं. Okay. We have a question in comment box. You just pointed out. Is disc bulge and disc slip are the same terminologies? ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं ये भी डिस्कस करने ही लगी थी. डिस्क स्लिप जो है इट इज अ नॉर्मल स्लैंग. ठीक है, ये स्लैंग है जो कि सिर्फ एक नॉर्मल लेमैन जो लैंग्वेज में यूज होता है. डिस्क स्लिप इज नथिंग, इट इज अ डिस्क बल्ज. बेसिकली जो डिस्क जो आपकी प्रोट्यूड हो रही है वो एक टर्म वही चीज है जो कि जिसको हम डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोट्रूजन ये टर्म्स यूज करते हैं. और डिस्क स्लिप एक नॉर्मल स्लैंग है जो कि सिर्फ कॉमनली यूज नहीं होती, मतलब मेडिकल टर्म्स में यूज नहीं होती लेकिन कॉमनली यूज हो रही है ये टर्म. सो आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, डिस्क बल्ज या डिस्क स्लिप ये से है सेम, लेकिन डिस्क स्लिप एक बिल्कुल गलत लफ्ज है. ओके, फैजा प्लीज आप अगर इस पॉइंट पर आए कि हम डिस्कस करें कि एक पेशेंट है, एक लेमैन है इधर, या फिर एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ऑफिस लाइफ गुजार रहे हैं, उनको किस स्टेज पे अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है, किस स्टेज पे जाके अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है, और किस स्टेज पर जाके अपने सर्जन से कंसल्ट करना है, ये अगर आप प्लीज इस पॉइंट पे थोड़ा सा. ओके, सबसे पहले तो हम इस तरह कर, अगर किसी कोई भी पर्सन है उसको सबसे पहले तो इस बात की अपने पोस्चर की अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक नॉर्मल गुड पोस्चर क्या होता है. अगर वो उस पोस्चर को फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई अवेयरनेस नहीं है और वो नॉर्मली अपनी रूटीन में ऑफिस वर्क में कंटिन्यू है, और आजकल तो वैसे भी ऑफिस डेस्क जॉब्स में लॉन्ग सिटिंग होती है, तो डेस्क जॉब में जो प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है तो पेशेंट्स ज्यादा उस तरह के ज्यादा प्रेजेंट्स कर रहे हैं आइदर एट यंग एज में लाइक 30s. आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स ऑफ लाइक 25 to 30 इयर्स में, फीमेल्स को भी देखा मैंने जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या कुछ है जो जिनको जो प्रोलॉन्ग सिटिंग है जिनकी, और वो डिस्क बल्ज के साथ प्रेजेंट कर रही हैं और इतना सुयर डिस्क बल्ज के साथ प्रेजेंट कर रही हैं. तो ये बेसिकली अब पेन जो है किसी को भी सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसका नॉर्मल उसका गुड पोस्चर क्या होना चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं करे, कंडीशन डेवलप हो गई है, उनको बैक पेन डेवलप हो गई है,
तो उनको इमीडिएटली इसको फोकस सिर्फ एक जनरल, हम क्या करते हैं नॉर्मली, किसी फिजिशियन को दिखाया, पेन किलर्स एनसिड्स ली और बस हो गया काम। किसी ने सजेस्ट कर दिया कि हॉट हीटिंग पैड लगा लो, तो हीटिंग पैड लगा लिया और दैट्स इट, दैट इज ऑल। तो कंडीशन उस वक्त कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाती है, लेकिन इन शॉर्ट वो अंदर अंडरलाइन कंडीशन को एग्रीवेट कर रही होती है। आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते जा रहे हैं, आप प्रॉपर अवेयरनेस नहीं ले रहे कि आपको करना क्या है, तो वो कंडीशन जो है वो एग्जैजरेट करती रहती है और एट द एंड वो एक प्रॉपर डिस्क बस्ट की सूरत में प्रेजेंट करती है कि वो पेन जो है वो रेडिएट हो रही होती है और वो नमनेस, टिंगलिंग, ये सारी कंडीशंस जो है कॉज कर रही होती है। तो एट द फर्स्ट स्टेज ही जब आपको बैक पेन हो जाए तो आपको चाहिए कि आप किसी न्यूरोसर्जन या फिर एक फिजिकल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें फौरन, ताकि आपकी डिजीज जो है आप प्रोग्रेस करे ही ना। आई होप ये पॉइंट We have, क्लियर हो गया होगा। yeah, I hope everyone got it. We have another comment. Is disc bulge permanent? Can we resolve it with our surgery? Can we manage it with physical therapy? अगर आप ओके, इसको ये बहुत एक्सटेंसिव, ये डिस्क बल्ज जो है बिल्कुल परमानेंट नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी स्वेरिटी पे, ये कंडीशन कितनी स्वेयर है। सबसे पहले अगर जो है कंडीशन पेशेंट ने प्रेजेंट किया नॉर्मली, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको पेन मेडिकेशन देंगे, लाइक एनसिड्स दे दी ताकि उनकी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग रिड्यूस हो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फिजिकल थेरेपी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ डिस्क बल्ज मैनेजमेंट। फिजिकल थेरेपी के रोल को हम अभी डिस्कस करते हैं डिटेल से, लेकिन पहले हम अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे भी बात कर लेते हैं। तो प्लीज फिजिकल थेरेपी, पेन मेडिकेशंस हो गई, फिजिकल थेरेपी हो गई, दूसरी हमारी क्रायोफैक्टर एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, ताकि एक क्रायोफैक्टर जो मैनिपुलेशंस करते हैं उसके साथ हम डिस्क को और नॉर्मल स्पाइनल रीअलाइनमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, एपिड्यूरल स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस होते हैं जो कि उस वक्त पेन को, ये नॉर्मली सजेस्टिव नहीं होते, लेकिन ये प्रैक्टिस चलती आ रही है, एक एपिड्यूरल स्टीरॉइड इंजेक्शंस। और दूसरी हमारे पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन होती है जब आपके सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाएं, फिर सर्जरी की हमारे पास ऑप्शन होती है। और सर्जरी जिसमें लेमिनेक्टमी आ जाती है, डायसेक्टमी आ जाती है, स्पाइनल फ्यूजन आ जाती है। तो ये इन चीजों से हम सर्जरी से भी हम डिस्क बल्ज को, डिस्क प्रोट्रूजन को या डिस्क को हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों से भी लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जरी है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि डिस्क बल्ज जो है वो परमानेंट होगा, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर एक दफा डिजीज डेवलप हो जाए तो आपको उसके बाद प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। जब तक आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो वो कंडीशन दोबारा डेवलप हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल रिजॉल्वेबल कंडीशन है। आप फिजिकल थेरेपी अच्छी लें तो आपकी उसी से ही रिजॉल्व हो जाती है कंडीशन। ओके, इन केस पेशेंट्स को अगर आपने जैसे भी बात की कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारे जब नहीं प्रोग्रेशन कर रहे तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है सर्जरी। फिजिकल थेरेपी से हम रिलेट करते हुए चीज़ों को यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि क्या सर्जरी से पहले हमें अपने फिजिकल थेरेपिस्ट को विजिट करने, इधर हमें सर्जरी के बाद किस स्टेज में जाके उसको अपने फिजिकल थेरेपिस्ट को अटेंड करना। अगर ये भी आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए और बाकी लोगों के लिए इस पॉइंट पे थोड़ा सा ओके, बता। ठीक है। फिर सबसे पहले अगर आपको बैक पेन प्रेजेंट हुई है, अब पेशेंट, एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता कि उसकी डिस्क बल्ज की सिवियरिटी कितनी है। ठीक है, अब ये आप एक न्यूरोसर्जन को, एक फिजिकल थेरेपिस्ट को उसको दिखाएंगे तो फिजिकल थेरेपिस्ट वो ही बता सकेंगे देख के कि ये आपकी सिवियरिटी कितनी कितनी है, और आइदर ये इट विल बी मैनेज्ड विथ फिजिकल थेरेपी और विथ सर्जरी। अब फिजियोथेरेपी से मैनेजमेंट इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छी हो जाती है, लाइक मिड स्टेजेस में भी बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल फिजिकल थेरेपी में हमारे पास क्या आती है, मैनुअल थेरेपी आती है, जिसमें मोबिलाइजेशन होती है, मैनिपुलेशंस होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं स्पाइन की मोबिलिटी इंक्रीज करने में, मसल टेंशन को रिड्यूस करती हैं और ब्लड फ्लो इंक्रीज करती हैं। तो ये मैनुअल थेरेपी के बाद हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइज थेरेपी आ जाती है, जिसमें फिजिकल थेरेपिस्ट वेरियस एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं कि स्पाइन के मसल्स को, स्पाइनल को फ्लेक्सिबिलिटी आए, उस एरिया में से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट जो हम स्पाइनल क्योर में दे रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली दे रहे हैं, और जिसकी वजह से ये और एक काफी प्रेवलेंट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, जो कि है ट्रैक्शन थेरेपी। ट्रैक्शन थेरेपी बेसिकली क्या होती है, ये दो स्पाइनल वर्टिब्रास जिसमें कंप्रेशन आ गया, डिस्क जो है डिस्क प्रोट्रूड हो गई है, तो और वर्टिब्रास कंप्रेस हुए हैं, तो हम थ्रू ट्रैक्शन हम डिस्क वर्टिब्रास को
ओपन अप करते हैं। एक्चुअली ट्रैक्शन क्या होती है कि एक आप वेट लगा के वर्टिब्रास को ओपन कर रहे हैं ताकि इस डिस्क के ऊपर से प्रेशर एलिविएट हो, और जब प्रेशर एलिविएट होता है तो फिर ये स्पाइनल को मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि डिस्क जो बल्ज हुई हुई है बाहर को निकली है वो अंदर रिवर्स हो सकती है। तो ये ट्रैक्शन थेरेपी काफी सक्सेसफुल थेरेपी चल रही है आजकल तो, और फिजिकल थेरेपी के साथ साथ हम ट्रैक्शन थेरेपी दे रहे होते हैं। उसके बाद सेवरल मोडालिटीज हम अप्लाई करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आ गई, लेजर ट्रीटमेंट्स हो गए, और अल्ट्रासाउंड, हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, ये सारे ट्रीटमेंट्स ये साथ साथ चलते हैं। तो ये सारी, और फिर सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हमारा टॉपिक भी है आज के, पेशेंट को हम ये गाइड करते हैं कि उसका पोस्चर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पोस्चर जो है उसका, जब तक वो अपना करेक्ट पोस्चर नहीं रखेगा, करेक्ट अलाइनमेंट नहीं रखेगा, करेक्ट बायोमैकेनिक्स नहीं रखेगा अपनी, तो उसकी ये कंडीशन सीवियर होती रहेगी और हमारे ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सबसे ज्यादा चीज उसको गाइड करनी होती है। और उसके बाद उसकी पेशेंट की फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं कि उसको डेली लाइफ एक्टिविटीज अपनी कैसे करनी है, लाइक उसको अपना वेट, उसको किस तरह अपनी सिटिंग पोस्चर कैसे रखना है, अपना अपना बेल्ट सपोर्ट कब यूज करनी है उसने अपनी ड्राइविंग, थ्रू ड्राइविंग या कुछ भी कंडीशंस हैं, नॉर्मल जो भी लाइफ एक्टिविटीज हैं उसको मॉडिफाई किस तरह करना है ताकि ट्रीटमेंट उसको बेनिफिशियल रहे। और 100 बहुत बहुत लाइकली इसमें कंडीशंस होती हैं जो कि पेशेंट रिजॉल्व कर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और साथ साथ वो प्रिकॉशंस अपनी लेते रहे तो इट दिल गोज वेल विद द लाइफ। Thanks, doctor. We have again kind of similar question. Differentiate disc bulge and disc. Can you please leave a short note again over this? I guess ओके, ये हमने वैसे डिस्कस कर लिया है। जी जी। कुछ स्टूडेंट्स आई गेस बाद में ज्वाइन किया, तो आप प्लीज इस पे। ओके, शुड आई रिपीट? ओके, डिस्क स्लिप इज अ स्लैंग, नॉर्मल स्लैंग, जो कि नॉर्मली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्क बल्ज को ही कहते हैं। डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोट्रूजन, ये सारी सेम टर्म्स हैं। डिस्क स्लिप एक स्लैंग है जो कि हम सिर्फ यूज करते हैं, वैसे मेडिकल इसमें कोई नॉर्मल टर्म नहीं है ये, ठीक है, ये सिर्फ एक लेमन टर्म है। Okay, got. Hope so everyone got it now. अभी आपने बात की कि हमें पोस्चर की गाइड करना है हमने पेशेंट को अकॉर्डिंग टू डेली लाइफ, और उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वट एवर जो भी उसके लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग। व्हाट इज आइडियल पोस्चर? सबसे बेस्ट पोस्चर क्या है अगर इस ओके बैठ जी प्लीज। ओके, आइडियल पोस्चर ये ही होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस हो, लाइक योर स्पाइन, आपकी स्पाइन के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़ रहा हो, ठीक है, स्पाइन के ऊपर, मसल्स के ऊपर, लिगामेंट्स और जॉइंट्स के ऊपर कोई एडिशनल प्रेशर ना पड़ रहा हो, सिर्फ नॉर्मल वेट जो कि आपकी बॉडी का और है, जो स्पाइन के जिसके लिए स्पाइन बनी है, यानी उसके अलाइनमेंट्स बिल्कुल उसी तरह हो जिस तरह नेचुरल कर्व होता है। तो उसके लिए अगर हम हेड से शुरू होते हैं, आपका हेड जो है बिल्कुल शोल्डर्स के मिड में हो, लाइक ऐसे फ्लेक्शन में, ऐसे एक्सटेंशन में, लाइक हम आजकल हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ ये मोबाइल फोन है जो कि हम ऐसे करके यूज कर रहे होते हैं हमेशा, और हेड पे, जिससे हमारा जो है हेड के ऊपर और स्पाइन के ऊपर, नेक के ऊपर और शोल्डर्स के ऊपर कितना ज्यादा एडिशनल प्रेशर आता है ये हम उस वक्त गौर ही नहीं करते, बाद में फिर हम ऐसे ऐसे दबा रहे होते हैं अपने मसल्स को। तो ये सबसे ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने देखना है कि हमारे हेड जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्शन में और बहुत ज्यादा एक्सटेंशन में ना हो, बल्कि एक नॉर्मल अलाइनमेंट में हो। फोन यूज करना है हम ऐसे यूज कर सकते हैं, अपनी नेक को स्ट्रेट करके, ठीक है, डेस्कटॉप यूज करना है तो हम अपनी आई लेवल के ऊपर इसको ला सकते हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम सबसे पहले पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने सर्वाइकल के पेशेंट्स को, कि आपने सबसे पहले तो अपनी ये चीजें इन पे गौर करना है। दूसरी चीज, अगर हम अपने शोल्डर्स को देखें तो शोल्डर्स आपके बाज दफा हैवी बैग लिफ्ट करने की वजह से एक शोल्डर ड्रॉप हुआ हुआ होता है, एक साइड पे हमने वेट दिया होता है, दूसरे साइड पे हमने दिया नहीं होता, तो शोल्डर आपके नॉर्मल अलाइनमेंट में होने चाहिए, यानी दोनों इक्वल होने चाहिए। तीसरी चीज, अगर हम अपने स्पाइन को देखें, हम वैसे काइफोटिक पोस्टर में ऐसे झुक के काम कर रहे होते हैं ऐसे मोस्टली, और मोस्टली हम यूं पीछे होके ऐसे यूं बैठे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, टेक लगा के काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे एक जो है हम अपने थोरेसिक स्पाइन को ओवर बर्डनाइज कर रहे होते हैं गलत पोस्चर्स में, उसके काइफोटिक पोस्चर को हम ऐसे करके और ज्यादा काइफोटिक कर रहे होते हैं। तो ये चीज जो होती है, हम इस पे ऊपर उस पे स्पाइन पे इस तरह से हम अपने प्रेशर डाल रहे होते हैं। दूसरा, हिप्स में बाज दफा हम एक लेग, सिंगल लेग स्टैंडिंग किए हुए होते हैं,
तो सिंगल लेग स्टैंडिंग में भी होता है, हमारा पेल्विस अलाइन नहीं होता। और दूसरी चीज, अच्छा, सिंगल लेग स्टैंडिंग पेल्विस, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, हमारा पेल्विस अलाइन नहीं होता एक साइड पे अगर हम सिंगल लेग स्टैंडिंग में, तो हमने ये सोचना है कि हमने दोनों साइड्स पे इक्वल वेट डालना है। एक साइड पे वर्क करके इस तरह से बाज दफा हम ऐसे करके भी खड़े होते हैं, किसी का पोस्चर इंटीरियर टिल्ट हुआ होता है, किसी का पेल्विस प्रीवियस टिल्ट पोस्टीरियर टिल्ट हुआ होता है। तो हमने उस चीज को भी हमें बॉदर करना होता है कि हमने पेशेंट को ये भी गाइड करना होता है कि आपकी पेल्विस स्ट्रेट हो। ठीक है, उसको पहले बताना होता है कि पेल्विस है क्या चीज, फिर उसके बाद उसकी पेल्विस जो है स्ट्रेट होनी चाहिए, कि कैसे स्ट्रेट कर सकता है वो, तो उसको ये बताना है। दूसरे, आपके नीज की पोजीशन और फुट जो है, फुट कभी आप कोई ऐसे करके एक टांग पे खड़ा होता है, कोई जो है हील्स पे खड़ा होता है, कोई नॉर्मल, हम नॉर्मली रूटीन में फोकस नहीं करते इस चीज को, लेकिन आपके फुट पे दोनों इक्वली प्रेशर डाल रहे हो, तो ये आपका जो है एक नॉर्मल पोस्चर हो सकता है। Okay, thanks, doctor. We have another query. Is L4 L5 disc bulge serious? इस पे वैसे पहले भी हमने बात की है, लेकिन प्लीज आप डिफाइन कर, अभी इसको थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर दें कि ठीक, L4 L5 डिस्क बल्ज वाई के बाकी लेवल से इस लेवल पे ये ज़्यादा सीरियस क्यों है? इस कंडीशन को हम मतलब ज़्यादा इसको ओके, सीरियसली टेकन करने की क्यों ज़रूरत है? जी मैडम। ठीक है। मैंने वैसे भी पहले भी डिस्कस किया कि नेक पे, क्योंकि हम नेक ज्यादा यूज कर रहे होते हैं और अपनी लो बैक जो है बेंडिंग और ट्विस्टिंग में हम गौर नहीं करते, तो वो सबसे ज्यादा यूज हो रही होती है। तो जो सबसे ज्यादा यूज हो रही होती है एरिया, उसी में डिस्क बल्जेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमारी L4 L5 पे प्रेशर इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि सबसे ज्यादा जब आप नीचे को बेंड करते हैं तो आपका मोस्टली प्रेशर सबसे ज्यादा आपकी L4 L5 पे ही आ रहा होता है। तो इस वजह से ये कंडीशन ज्यादा सुअर होती है, क्योंकि हमने नॉर्मल पोस्चर उसी तरह से अडेप्ट किया होता है और हम उस पर फोकस नहीं कर रहे होते कि हमने, कि हमारी बैक पे L4 L5 पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो ज्यादा प्रेशर उस एरिया पे पड़ता है, उस स्पेसिफिक एरिया पे, उस लंबर रीजन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए मोस्टली पेशेंट्स होते ही L4 L5 के ही हैं डिस्बल्जिस के। बाकी कंडीशंस भी होती हैं, लेकिन L4 L5 ये ज्यादा होती है, क्योंकि आप देखें जब आप बेंड करते हैं तो आपके ये लो बैक का जो एरिया है, स्पाइन का, स्पाइन अगर ऐसे है तो सबसे ज्यादा प्रेशर आप यूं बेंड करते हैं तो आपकी लो L4 L5 पे ही आ रहा होता है। तो इस वजह से ये कंडीशन जो है वो ज्यादा सीवियर होती है। अब आई होप कि सब लोगों को डिस्क बल्ज की एक कॉजेज, रीजंस एंड उसकी एक मैप जनरेट हो गया होगा कि डिस्क बल्ज क्या है। अब हम अगर बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो उसमें जैसे कि आपने सबसे पहले तो अभी डिस्कस हमने किया है उसमें कि पोस्चर की मेंटेनेंस है। अगर हम्म। उससे एक और क्यूरी अगर मैं ऐड करूं कि डाइट अफेक्ट, मतलब कि डाइट का भी ऑब्वियसली एक रोल है, किस हद तक है, कितना रोल है, और उसको हम मतलब कौन सी ऐसी डाइट है जो कि हमें फोकस करनी चाहिए कि हम इसको ज़्यादा लें? ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल, डाइट का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और डाइट पे हम बिल्कुल फोकस करते नहीं है। आजकल की जिस तरह की हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फास्ट फूड डाइट है हमारी, तो हम कभी गौर ही नहीं करते कि हमने हेल्दी डाइट लेनी है। और जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपका मिल्क, मिल्क इनटेक, मिल्क इनटेक, फ्लूइड इनटेक। मिल्क इनटेक इसलिए क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी जो कि आपकी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये सिर्फ बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मसल्स को भी रिलैक्स करता है। डिफरेंट रिसर्चेज अगर आप लिटरेचर देखें, तो मिल्क में ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे नेचुरल नेचुरल केमिकल्स हैं जो कि आपके मसल्स को भी रिलैक्स, जो कि मसल रिलैक्सेंट के तौर पे काम करते हैं। जैसे अब देखें हम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कॉल है कि दूध एक मुकम्मल गिजा है। तो मुकम्मल ग़िज़ा वो इसलिए है क्योंकि साइंस इसके ऊपर मुसलसल रिसर्चेस कर रही है, और दूध के अंदर, मिल्क के अंदर एक ऐसे-ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं। और सिर्फ रात को दूध पीना रिकमेंडेड होता है, क्योंकि मसल्स रिलैक्स होते हैं तो अच्छी नींद भी आ जाती है। तो मिल्क इनटेक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में आफ्टर 25 उनको बॉडी में से बॉडी से ले रहा होता है, बोन से ले रही होती है ब्लड। अगर हम प्रॉपर इनटेक नहीं करेंगे अपना, तो वो बोन्स वैसे ही वीक होती जाएंगी। दूसरी चीज ये कि फीमेल्स में और कंडीशंस होती हैं, लाइक आफ्टर 50 पोस्ट मेनोपॉजल के बाद तो है वैसे ईस्ट्रोजन लेवल डाउन होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ फीमेल्स ज्यादा जाती हैं, तो वो मिल्क इनटेक ज्यादा डाइट में होना चाहिए, कैल्शियम इनटेक। ठीक है, सेकेंडली वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक जो है, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी डिस्क जो है, वो डिस्क बनी बनी किससे होती है, फ्लूइड उसके अंदर होता है।
तो जैसे जैसे हमारा वाटर इनटेक कम होगा, हमारी फ्लूइड्स डिस्क के ऊपर जो फ्लूइड है वो कम होता जाएगा। अब फ्लूइड जैसे जैसे फ्लूइड कम होगा तो डिस्क के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता जाएगा, वर्टिब्रा उनकी मोबिलिटी कम होती जाएगी, और जब मोबिलिटी कम होगी उनकी तो वो स्पाइन के ऊपर प्रेशर ज्यादा डालेंगी, और फिर वो स्पाइनल नर्व्स को ज्यादा इरिटेट करेंगे, और जिससे बैक पेन और ज्यादा होएगी। तो इस वजह से फ्लूइड इनटेक और मिल्क इनटेक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में। ओके, अब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं डिस्क बल्ज की, तो वी हैव अनदर क्यूरी इन कमेंट बॉक्स। पोस्चर करेक्शन बेल्ट, कुछ लोग हैं जिनको बैक पेन आई और दे वेंट टू एट देयर ओन के वो जाते हैं एक पोस्चर बेल्ट खरीदते हैं और उसको बांध लेते हैं। एंड द अदर केस विद सर्वाइकल, उनको सर्वाइकल में पेन आई, उनको मूवमेंट में पेन आई, दे वेंट टू शॉप और उन्होंने एक कॉलर नेक कॉलर खरीदा और उसको बांध लिया। इसको हम कितनी देर के लिए यूज़ करना चाहिए, अगर और किस वक्त यूज़ करें हम? नेक कॉलर्स को भी मैं पोस्चर करेक्शन बेल्ट के साथ कोरिलेट करूँगा कि इसको हम कितने वक्त के लिए यूज़ करें और कब यूज़ करें, और क्या हमें विदाउट रिकमेंडेशन, विदाउट कंसल्टिंग टू फिजिकल थेरेपिस्ट इसको यूज़ करना चाहिए? ओके, पोस्चरल बेल्ट जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा रोल होता है, एक्यूट कंडीशंस में तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा होता है। जब हम पोस्चर करेक्शन कोई भी बेल्ट लेते हैं, या एक लंबर बेल्ट ले लेते हैं, थोरेसिक ले लेते हैं, या सर्वाइकल ले लेते हैं, कोई भी बेल्ट ले लेते हैं, हम उसको लगा पहनने के बाद पेशेंट रिलीफ इसलिए फील करता है क्योंकि एकदम से बेल्ट जो है वो उसके मसल्स को सपोर्ट करती है, और स्पाइन के ऊपर प्रेशर रिलीव हो जाता है। तो वो प्रेशर रिलीव होता है तो पेशेंट को लगता है कि वो हमारी कंडीशन इससे बेहतर हो रही है, तो वो उसको ले लेते हैं। असल में बेसिकली हो क्या रहा होता है कि उसके सिर्फ स्पाइनल मसल्स को सपोर्ट किया हुआ होता है उस बेल्ट ने, जिसकी वजह से उसका प्रेशर स्पाइन के ऊपर से रिलीव हुआ हुआ होता है। अब ये प्रेशर रिलीफ को हम एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कह सकते। एक पेशेंट जो है हम उसको उसको क्या कौन सी बेल्ट चाहिए, किस तरह के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए बेल्ट, ये एक फिजिकल थेरेपिस्ट या ऑर्थोटिक्स वाले होते हैं वही सही रिकमेंड कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी बेल्ट चाहिए। तो पेशेंट फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट किए बगैर, अगर वो या किसी डॉक्टर से, किसी भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से कंसल्ट किए बगैर खुद से बेल्ट नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर आप बेल्ट ले लिए, और रिकमेंडेड बेल्ट किन सूरत में होती है कि एक्यूट कंडीशंस में तो रिकमेंडेड होती है क्योंकि हम ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करते हैं, मसल्स के ऊपर मसल पे इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो वेट बेयरिंग कर सकें, क्योंकि मसल स्पैज्म में होते हैं। तो उनके ऊपर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती उनमें कि वो वेट बेयरिंग कर सकें। तो वो हम उस कंडीशन में उनको रिकमेंड कर देते हैं कि शुरू में उनकी पेन जो है उनके मसल्स को सपोर्ट मिलती रहे थ्रू, ताकि स्पाइन जो है उनकी रिलीफ रहे पेन से। एज वी गो ऑन विद द प्रोसेस, जब हम जैसे जैसे हम मसल्स को स्ट्रेंथन करते जाते हैं, तो हम इस बेल्ट को उतरवा देते हैं पेशेंट्स को। सिर्फ वर्किंग कंडीशंस में हम इसको रिकमेंड करते हैं कि आपने ड्यूरिंग ड्राइव इसको ले लिया, या जो है कोई स्ट्रेसनेस काम करने लगे हैं तो आपने तब ले लिया इसको, बेल्ट को। ठीक है, हम इसको उतरवाते हैं ताकि स्पाइन को के मसल्स को आदत हो लोड बेयर करने की, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथनिंग का एक प्लान है ना, कि हम मसल्स को स्ट्रेंथन अप करते जा रहे हैं। तो हमें बेल्ट जैसे जैसे हम बेल्ट उतारते जाएंगे तो ही मसल्स हमें पता चलेगा मसल के अंदर कितनी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डेवलप हुई है। फिर उसके बाद मसल्स को पेशेंट्स को कहते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी कैपेबल इसको जो है ना यूज करना कम करते जाएं। जैसे जैसे वो इसको यूज करना कम करेंगे तो हमें मसल स्ट्रेंथ खुद ब खुद जनरेट होती जाएगी। इसको परमानेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि परमानेंट ट्रीटमेंट अगर बना लिया तो आपके मसल्स के अंदर लोड बेयरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। The next query, हम डिस्क बल्ज एंड नॉर्मल ओवरगन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के एक गोल्ड स्टैंडर्ड एमआरआई है जिस डिफाइन करने के लिए, देन एक्सरेज। इसके अलावा डॉक्टर फैज़ अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें कि हम मतलब डायग्नोज करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड तो एमआरआई तो हमने फाइंड कर लिया कि वो है, इसके अलावा अगर एनीथिंग एल्स के कुछ भी आप ऐड करें प्लीज। एनीथिंग एल्स, बाकी मैंने डिस्कस किया पहले भी कि पेशेंट के सिम्टम्स सबसे ज्यादा मेन डायग्नोस्टिक फैक्टर है कि पेशेंट प्रेजेंट किस तरह कर रहा है। अगर वो लिम्स में टिंगलिंग, नमनेस, इस तरह की सेंसेशन प्रेजेंट कर रहा है तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली अ डिस्क बल्ज। ओके, दैट्स we have next query is what is right treatment for disc bulge, either it is medicine or physiotherapy? Okay, it's let it me modify a little bit. ये बता दें, हमने डिस्कस किया है कि सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है जी। लास्ट और ऑप्शन। मेडिसन तो लाइक एक
फॉर शॉर्ट पीरियड पेन रिलीव पेन किलर्स के मतलब पेन होगी, सो परमानेंट ट्रीटमेंट वी हैव टू गो विद फिजियोथेरेपी। अब ये बता दें कि एक पेशेंट को कितनी देर के लिए उसकी रिकवरी टाइम कितना है और उसको कितनी देर करवानी चाहिए, और किन फैक्टर पे रिकवरी टाइम किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कंडीशंस पे, आइदर तो समथिंग एल्स। जी प्लीज। ओके। अच्छा, पहला क्वेश्चन यह था आपका कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे था कि ट्रीटमेंट कितनी देर करवानी चाहिए या और प्लीज। रिकवरी टाइम आपका कितना होना चाहिए। अच्छा, अब ये रिकवरी टाइम जो है पेशेंट की कंडीशन की स्वेरिटी पे डिपेंड करता है कि उसका डिस्बल्ज कितना सीवियर है। उसका आइदर इट इज बायलेटरल, ठीक है, ये बायलेटरल हो सकता है, पैरास्पाइनल, उसकी स्वेरिटी भी, यानी हम स्वेरिटी पे डिपेंड करता है कि डिस्बल्ज के कितनी देर में रिकवर होगा। ठीक है, ये हम ऐसे ही रैंडमली नहीं बता सकते कि एक पेशेंट ने कि इतने दिन में ठीक हो जाएगा, इतने दिन में ठीक हो जाएगा। हम विदाउट डायग्नोसिस, विदाउट असेसमेंट हम बता नहीं सकते इसको कि पेशेंट को कितनी देर में रिकवर होगा। दूसरी चीज ये कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें प्रिकॉशंस होती हैं। जब तक पेशेंट ट्रीटमेंट लिए जा रहा है और प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहा, लाइक वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी कंटिन्यू रख रहा है, लॉन्ग सिटिंग कंटिन्यू रख रहा है, लॉन्ग ड्राइविंग कंटिन्यू रख रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, या इस तरह की उसकी जो इरेगुलर हैबिट्स हैं, लाइक बेंडिंग करना, ट्विस्टिंग करना स्पाइन की, इरेगुलर हैबिट्स को उसने कंटिन्यू रखा हुआ है अपनी, तो हमारे ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसमें कि पेशेंट प्रिकॉशंस फॉलो करे, और उसका रिकवरी टाइम भी उस पर ही डिपेंड करता है कि वो प्रिकॉशंस को और होम प्लान जो फिजियोथेरेपिस्ट ने एडवाइस किया है उसको कितना रिलीजियसली फॉलो कर रहा है। तो उस पर डिपेंड करता है उसका रिकवरी टाइम। हम ये नहीं कह सकते कि रिकवर कुछ जल्दी भी कर जाते हैं, कुछ देर से भी करते हैं, कुछ में रीअकरेंस हो जाती है, क्योंकि वो एक दफा ठीक होने के बाद कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हो गए, तो वो नॉर्मल लाइफ की तरफ कंटिन्यू रहते हैं और फिर उसमें ये रीअकर हो जाती है कंडीशन। तो ये हम विदाउट स्टेटमेंट नहीं बता सकते। ओके। अभी जैसे कि आपने बात कहा कि हम एक ऐसी नेशन है जिनके खुद एतमादी माशाल्लाह एक नेक्स्ट लेवल पे है, वेरी पीक। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं जो सोचते हैं कि बैक पेन है ये खुद खुद ठीक हो जाएगी। ठीक है, वो अगर उनको अगर डायग्नोज भी कर दिया जाए कि आपका डिस्क बल्ज है, तो क्या इसकी नेचुरल हीलिंग या नेचुरल रिकवरी है? ये प्लीज। नेचुरल हीलिंग तो नेचुरल हीलिंग डेफिनेटली होती है, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके साथ ही नेचुरल हीलिंग होती है, लेकिन एक कंडीशन लेट मी डेवलप हो ऐड गई है। लेट मी हाँ जी। मेरे क्वेश्चन का मतलब ये था कि विदाउट ट्रीटमेंट एक मोजज़ाती तौर पे जिसको कहते हैं, अ, मोजाती तो बस मोजे होते ही हैं। मोजे किसके साथ हो जाए ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन विदाउट ठीक। ट्रीटमेंट एक कंडीशन डेवलप हो गई है। अब तिब का जी। प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, मेडिसिन का प्रोफेशन अल्लाह ताला ने इसीलिए इजाद किया है कि जाके उनसे हेल्प सीख किए जाए। ठीक है। ओके, आई गेस we have done with all the queries. Other than that, अगर किसी हमारी ऑडियंस में से किसी की कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ऐड कर दें। थैंक्स लॉर्ड डॉक्टर फैज़ा, आपने थैंक यू सो मच बहुत डॉक्टर खान फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं बोल सकूं। क्लियर इज़ ऑल माइन आवर टीम टू हैव यू। दैट्स रियली सो नाइस ऑफ यू कि आपने अपने बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम निकाल के दिया और एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड की बाकी स्टूडेंट्स के लिए और बाकी लोगों के लिए जो लर्न करना चाहते हैं। अ, हमारा यूथ प्रोग्रेस क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं हमेशा से लोगों से कहता हूँ कि आप आएँ, हमारे साथ कोलैब करें, हमारे साथ वर्क करें और इससे हम कम्युनिटी को जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके उसके लिए हम मिल के काम करें। मैं यस, हमेशा यू से आर डूइंग कमेंडेबल वर्क। इतने ज्यादा मत, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके जनरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कि इस डिजीज को, इस चीज को कितना ज्यादा फोकस करना चाहिए। थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट। आप कोई वी हैव अनदर क्यूरी आई गेस सो। Okay, here last one question. One patient came to a therapist during there is no movement or test decrease the symptom of the patient. Then what kind of treatment plan of that is are followed to deal such a kind of patient like specific symptom of the pain patient? I could not get that one. हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया ये क्या इन्होंने पूछा है। Okay.
Okay, we have another question. Do you offer workshop? Let me answer this one, please. ओके, बिल्कुल जी, हम यूथ प्रोग्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाते हैं। मैं अभी कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देता हूँ, तो आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में से अगर कोई भी हमारे साथ आए के ऑर्गेनाइज करना चाहे तो वो इसको हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने मेंशन कर दिया है, आप इस पे कांटेक्ट करें। हम वर्कशॉप्स, इवेंट्स हर तरह करवाते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स करवाते हैं, स्टूडेंट्स को एंगेज करते हैं, जनरल पॉपुलेशन को एंगेज करवाते हैं। हम अभी हमारे 3 से 4 कोर्सेज़ हैं अभी जो कि करंटली हैं। वी हैव एन ऑनलाइन कोर्स, हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, ही इज़ इंडियन। फिजियो क्लासरूम के जो हमारे फाउंडर हैं वो हैं हमारे साथ, उनका ऑनलाइन कोर्स है। एंड देन लाहौर में अभी हमारी नेक्स्ट वीक में एक वर्कशॉप है ACL रिहैब पे, तो उसमें उस वर्कशॉप के बारे में आपको बता दूं कि ये है वर्कशॉप हमारी जी डॉक्टर अदनान का नाम अगर आपने सुना हो, ये मैं नहीं हूँ, ये डॉक्टर अदनान अफजल हैं। ही इज़ HOD एट currently working as HOD at शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स रायवेंड सिटी में, तो उनके साथ हमारा कोर्स है। देन दूसरा कोर्स जो कि हमारा है वो है अभी करंटली डॉक्टर अभिषेक शर्मा PT, जो कि न्यूरो के माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, उनके साथ हमारी एक वर्कशॉप है हेमीप्लीजिक पैरालिसिस रिहैब पर। तो आप उनमें से अगर किसी पे भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वाइजा प्लीज़ ऐड कीजिएगा कंक्लूडिंग नोट, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैसेज और जनरल पॉपुलेशन के लिए हमारे साथ जो लोग कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ यही एक कंक्लूडिंग नोट है कि ड्यूरिंग स्टडी भी अपने पोस्चर का ध्यान रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स और जनरल पॉपुलेशन के लिए भी यही नोट है कि पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोस्चर की वजह से मैंने बहुत ज्यादा जो है केसेस देखे हैं जनरल मसल्स प्रॉब्लम के, स्पाइन के प्रॉब्लम के। तो आप अपने पोस्चर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ख्याल रखें, क्योंकि ओके, थैंक्स लॉट। स्पाइन के बगैर तो बंदा कुछ भी नहीं है। तो स्पाइन ने ही लोड बियर किया करना है, तो स्पाइन का खास ख्याल रखें अपनी। जी बिल्कुल, थैंक यू, थैंक्स लॉट। वी हैव थैंक यू सो मच अनदर डॉक्टर लास्ट विधान। क्वेरी। थैंक यू। अच्छा, ओके। ओके, प्लीज, लास्ट क्वेरी, what you can do the treatment for non-specific pain symptom patient like non-specific or a bit we can relate it with our topic non-specific low back pain। डॉक्टर फैज़ अगर आप इसको डिफाइन करें कि नॉन नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। नॉन या प्लीज। स्पेसिफिक से इनका मतलब है कि नॉन डायग्नोस्ड। या तो एग्जैक्टली, आई हाँ, और गॉट दैट। नॉन डायग्नोस्ड केसेस, एक फिजिकल थेरेपिस्ट का काम क्या है? अपनी कंडीशन को डायग्नोस करके उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट करना। तो हम नॉन डायग्नोस को कंजर्वेटिवली मैनेज नहीं कर सकते जब तक डायग्नोस प्रॉपर नहीं होगा कि आइदर इट इज डिस्क बल्ज, आइदर इट इज मस्कुलर प्रॉब्लम, आइदर इट इज स्ट्रेटनिंग, और को एल्कालोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, कोई भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, कोई भी, इतनी ज्यादा सेवरल डिजीजेस हैं। हर एक का ट्रीटमेंट प्लान सेम नहीं होता, हर एक को हम सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हर एक एक की बॉडी पे जो ट्रीटमेंट सूट किया वो दूसरे पे भी नहीं सूट करता। हमें हर एक के हिसाब से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और उसका अकॉर्डिंग टू कंडीशन ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करना होता है। तो हम ऐसे ही रैंडमली ट्रीटमेंट, एक फिजिकल थेरेपिस्ट का इतने साल पढ़ने का और एक्सपीरियंस का क्या फायदा है कि अगर वो नॉर्मल ऐसे ही ट्रीटमेंट शुरू कर देगा विदाउट डायग्नोसिस। अच्छा, another query, we are getting another queries again. I used to sit most of time while studying. This cause consistently at my low back. What treatment am I can take? Hamzalti, so yes, I will suggest just visit your physical therapist. Either you can contact me. Here is my contact number. Either visit your nearest physical therapist. Please पहले अपनी और आई थिंक यू असेसमेंट कैन करवा। विजिट स्पाइन क्योर आल्सो, इट इज अ स्पाइन सेंटर। Yeah, I will refer to you for sure, doctor. I will refer to you. थैंक यू सो मच। Thanks a lot, doctor. Take थैंक यू सो care. मच Allah, डॉक्टर अदान, थैंक यू। okay. Allah Hafiz.